अमरीकी कौंसल जनरल जेनिफर लार्सन ने गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। ये मुलाकात एक ऐसे वक्त की गई जब आज वज़ीर आला अमरीका रवाना हो रहे हैं। हैदराबाद में तकरीबन 200 कंपनियां काम कर रही हैं। ये कंपनियां रियासत में सरमायाकारी कर रही हैं। जेनिफर लार्सन ने इस सिलसिले में मुलाकात की फोटो को ट्वीट किया है। महिंद्रा ग्रुप के सदरनशीन आनंद महिंद्रा ने गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से जुबली हिल्स में वाक़ उनकी क़यामगाह पर खैर सगाली मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक इस मुलाकात के दौरान रियासत में महिंद्रा ग्रुप की जानिब से सरमायाकारी के मसले पर तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया गया। सदरनशीन महिंद्रा ग्रुप ने यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी में ऑटोमोटिव डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी कबूल करने पर रजामंदी जाहिर की। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने लोकसभा में बताया कि मुसलमान गुर्बत की वजह से सेहत की सहूलतों तक रसाई नहीं रखते। इसके बावजूद वो ख़ानदानी मनसूबाबंदी पर अमल कर रहे हैं। यही वजह है कि मुस्लिम नौमौलूद की शरह अमवात हिंदुओं के मुकाबले में कम है। कोविड के दौरान 40 लाख हिंदुस्तानियों की अमवात का अंदाज़ा लगाया गया है। ये मोदी हुकूमत की गलत पॉलिसियों की देन है। इसके बावजूद भी अब तक सेहत आमा की खिदमत को मौसर बनाने के लिए सरगर्म इक़दाम नदारद हैं। सदर मजलिस ने पार्लियामेंट में महकमा सेहत के मुतालबात ज़र पर तकरीर की। उन्होंने कहा कि भारत में सेहत के शुबे पर GDP का 1.7% खर्च किया जा रहा है, जबकि बजट में इसका तखमीना 2.1% रखा गया था, जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 की जानिब से सिफारिश करदा 2.5% से कम है। So the Indian health expenditure, which was about 1.6 GDP and was budgeted to be 2.1 of GDP in 2023, is lower than 2.5 recommended by the National Health Policy 2017. And the 15th Finance Commission, sir, recommended 2.5 GDP by 2025. However, even this recommendation is consistently lower than China 3% and other countries, so Korea 5%. So the PMA BHIM scheme saw 22% reduction in allocation compared to BE of 23-24. Only 47% of the funds allocated in 23-24 utilized as per the revised estimates. So the NHM budget has been declining when adjusted for inflation. This has resulted in a situation where most PHCs and CHEs do not have adequate infrastructure or do not have basic human resources like doctors and nurses. For example, sir, in Simanchal, 4 districts have a population of 1 crore. Katiyar has only 57 PHCs, Araria 39, Kishanganj 16, and Purnia 51. One PHC is supposed to serve 30,000 people in Simanchal. Third point, the majority of Indians are forced to go to private hospitals. The majority of healthcare expenses are out of pocket. And this is the main cause of poverty and debt, sir. Sir, in Ayushman Bharat, 30,170 hospitals have been empaneled, out of which 56% are public hospitals. Shouldn't these hospitals already provide free healthcare? Standing Committee on Health also observed the hospitals were sparsely distributed across the country. CAG 2023 noted deficiency in the quality of infrastructure at several empaneled healthcare providers. Sir, CAG also reported multiple cases of fraud where dead people were given treatment under Ayushman Bharat, sir. Sir, as of August 23, 39% teaching, 49% non-teaching positions across AIIMS are vacant. Teaching vacancies are higher in campuses such as Madurai 77%, Jammu 61%, Rajkot 61%, and AIIMS and BB Nagar in Hyderabad has 45% staff, sir, vacancies, sir. Sir, the Prime Minister taunted Muslims and spread false news that we have more children. But this own ministry had said that the TFR for the country is falling and the TFR of Muslims has fallen the fastest. And may I quote and bring the notice of August House that the TFR rate of Muslims have fallen down
from 4.41 to 2.36. The Muslim men use highest contraception than the Hindu people of 34.10%. एकदम झूठ बोल Kashmir and Lakshadweep, some of the have the lowest fertility rate. Muslim women, this is, madam, you are the minister, you should know, National Family Health Survey 2019. Obaisi साहब, you are very अब उन्हें पूछ रहे हैं तो मैं क्या करूं सर? Only you address to the chair. Thank you, sir. Madam को नहीं मालूम, मिनिस्टर है. Muslim women are now using contraception nearly as much as Hindu women, that is 60.2%. The truth, sir, is NFHS data says that Muslims lose access to healthcare facilities due to poverty. Despite this, Muslims have better sanitation, they practice family planning, and because of this, Muslim children have lower infant mortality rates than Hindus. Unfortunately, NFHS data shows that neither in life nor in death the discrimination stops. If a forward caste non-Muslim is up to 50 and OBC Muslim only lives till 43, Adivasis die 4 years sooner than the upper caste. Lastly, sir, I would request the Honorable Prime Minister to inculcate a scientific temperament as the Constitution Article 51 said. Let me remind this August South that Priyam once said that surgery is carried out on a human body when it is healthy. He had once said that plastic surgery and in vitro fertilization existed in the past. This is reflected today in the fact that 40 lakh Indians are estimated to have died during COVID thanks to Modi's rule. It is reflected in the fact that the government has still not taken any active steps to improve healthcare delivery in India, sir. This is what I have to say. Thank you. अकबरुद्दीन ओवैसी कायद मजलिस मुखर्रना पार्टी की कामयाब नुमाइंदगी के बाद वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने असम्बली में ऐलान किया कि उस्मानिया दवाखाने की हेरिटेज इमारत का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा और साथ ही पुलिस हेडक्वार्टर्स गोशा महल की 30 एकड़ अराजी पर दवाखाना उस्मानिया की नई इमारत तामीर की जाएगी। रेवंत रेड्डी ने बताया कि इस सिलसिले में उन्होंने अहदेदारों के साथ जायज़ा भी लिया है। साथ ही उन्होंने बताया कि हल्का असम्बली चंद्रायनगुट्टा में सीवरेज लाइनों की तनसीब के लिए 300 करोड़ रुपए की फराहमी के लिए हुकूमत संजीदा है। इतने भी भट्टी साहब ने जो बजट दिया हुआ है सब कुछ पुराना शहर में, मैं पहले से बोल रहा हूँ, दैट इज़ नॉट ओल्ड सिटी, दैट इज़ ओरिजिनल सिटी। ये ओरिजिनल सिटी को रिस्टोर करने के लिए हम जितना कोशिश कर रहे हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और अकबर साहब, मैं आपको वादा कर रहा हूँ, वो जो उस्मानिया हॉस्पिटल हेरिटेज बिल्डिंग है उसको भी बचाएंगे और उस्मानिया हॉस्पिटल गोशा महल एरिया में 30 एकड़ में बनाने के लिए हम ऑलरेडी सरकार में ऑफिसरों को आदेश दे चुके हैं। आने वाले 15-20 दिन में मैं गोशा महल में जो पुलिस पुराना क्वार्टर्स है पूरा निकाल लेके वो नया उस्मानिया हॉस्पिटल बनाने के लिए हम लोग तय कर दिए। आने वाले कुछ दिनों में हम लोग वो काम भी शुरू कर देंगे। वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने हुस्नाबाद हल्के के चिन्ना मुल्कनूर जाने के दौरान किसानों से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हुकूमत ने किसानों से किए गए वादे के मुताबिक फसल पर कर्ज़ों की माफ़ी को यकीनी बनाया है। उन्होंने कहा कि 2 लाख रुपए तक के कर्ज़जात पहले ही माफ़ कर दिए गए हैं और 1.5 लाख रुपए के कर्ज़जात जल्द ही माफ़ कर दिए जाएंगे। किसानों को मशवरा दिया गया है कि वो मंडल ज़राई ऑफिसर के पास अपनी तफसीलात पेश करें और कर्ज़ माफ़ी की सहूलत से इस्तिफ़ादा करें। లోపల 2 లక్షల లోపల ఎందుకంటే కళ్ళ కాలి కాగానే మళ్ళీ 2 లక్షల లోపల రూపాయి నుంచి 2 లక్షల లోపల ఉన్న అందరికీ ఒకటేసారి వస్తుంది. ఇలా ఎవరికైనా తప్పిపోయి ఉంటే కూడా మీ ఏవో కలవండి, ఆధార్ కార్డ్ నెంబర్ ఇది, ఎందుకు తప్పిపోయింది, ఎందుకు రాదు, ఎందుకు వస్తుంది, పొరపాటు అవుతుందంటే కరెక్ట్ చేస్తారు. అర్థమైందా? हल्का असम्बली कोड़ंगल के कोजगी में वाक़े नाचारम कस्तूरबा गांधी स्कूल के तलबा ने एहतजाज किया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि थाने में कीड़े आ रहे हैं और इस सिलसिले में जब हुकाम से शिकायत की गई तो इस पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। इस वाक़े को फौरी रोकने का उन्होंने मुतालबा करते हुए धरना दिया और कलेक्टर से मुतालबा किया कि वो इस सिलसिले में आगे आते हुए मुदाखलत करें।
పిల్లలకి ఏమన్నా ఇస్తే కూడా ఇయ్యే సార్. కంప్యూటర్ వచ్చింది సార్, కంప్యూటర్ ఇంకా నాకు రాలేదు సార్. ఇంటికనే సరిగా అన్నం తినమని హాస్టల్కి వేస్తే హాస్టల్ కూడా సరిగా పెట్టారు చూడండి సార్. అసలు ఏం చదువుకో చెప్పండి సార్. కులాలు ఇంకేం ఏమి ఇవ్వదు సార్. 232 సార్. ఓకే సార్, మేము వచ్చిన వరకు ఓకే సార్. ఇప్పుడే కాదు సార్, ఆమె ఎప్పుడైతే వచ్చిందో అప్పటి నుంచి ఇదే సార్. మా అక్క వాళ్ళు కూడా ఉండరు సార్. వాళ్ళు ఇట్లా వెళ్ళింది సార్, వాళ్ళకి ధైర్యం లేక చెప్పలేరు. మేము ఆగలేదు సార్. మేము తినట్టుందే మాకు నెక్స్ట్ వచ్చే వాళ్ళు తినాలి కదా, అందుకని మేము మొన్న మా మమ్మీ కూడా చెప్పిన సార్. మా మమ్మీ చేయమని రిక్వెస్ట్ చేసింది. रियासती वज़रा पी श्रीनिवास रेड्डी, श्रीधर बाबू, सीतक्का ने भोपालपल्ली जिले का दौरा किया। इन वज़रा ने वन महोत्सव प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर पौधे लगाए और गांधीनगर में इंडस्ट्रियल पार्क का संग बुनियाद रखा। जश्न आज़ादी हिंद के ज़िमन में मीना हॉस्पिटल की खुसूसी पेशकश। आइए अमराज से आज़ादी व छुटकारा पाएं। 15 जुलाई था 15 अगस्त मुफ्त हेल्थ कैंप। गरीब व जरूरतमंद मरीजों के लिए खुशखबरी। तमाम अक़साम के मुआयनाजात पर 20% डिस्काउंट। रजिस्ट्रेशन जारी है। माहिरीन तिब व सेहत से मुफ्त मुशावरत। सेहतमंद मुआशरे की तश्कील का ज़ामिन। आलमी शोहरत याफ्ता डॉक्टर्स की खिदमत। बेहतरीन इलाज व मुआलजे की सहूलतें। असरी तकाज़ों और मिशनरी से लेस शानदार दवाखाना। आवाम की खिदमत थी मीना हॉस्पिटल का नस्बुलैन। मीना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शिवरामपल्ली, राजेंद्र नगर, पिलर नंबर 254, हैदराबाद। श्रीशैलम डैम के दरवाजे खोल दिए गए, जिसके नतीजे में पानी का बड़े पैमाने पर अखराज हो रहा है। पानी के अखराज का खूबसूरत मंजर देखने के लिए आवाम की बड़ी तादाद श्रीशैलम घाट रोड पर पहुंच रही है, जिसके पेश नज़र ट्रैफिक को बाकायदा बनाने के इंतजाम किए जा रहे हैं। इसी दौरान 15 किलोमीटर तक ट्रैफिक जैम की शदीद सूरत हाल देखी जा रही है। वायनाड में महकमा जंगलात के अहदेदारों ने 6 अफराद की जान बचाई। रेस्क्यू टीम ने 8 घंटे की जदोजहद के बाद लैंडस्लाइड के इलाके से 4 बच्चों के बशमूल 6 कबायलियों को बचाया। इब्राहिम बाग गोलकुंडा में कार की बाइक को टक्कर के नतीजे में एक लड़का हलाक और उसका बाप जख्मी हो गया। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब रॉन्ग साइड से आने वाली कार ने बाइक को टक्कर दे दी। कार चलाने वाला हालत नशे में था। कामारेड्डी जिले में हालत नशे में ठहरी हुई खातून का अगवा करने की बाज़ अफराद ने कोशिश की। इन अफराद को देखकर मुसाफिरीन ने उन्हें रोका, जिस पर ये अफराद वहां से फरार हो गए। मुसाफिरीन ने पुलिस को इस बात की इत्तला दी। पुलिस ने पता चलाया कि इस खातून का ताल्लुक हैदराबाद के नाचारम इलाके से है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन,
2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।